So what we are going to get here is, see, in the next step it will be actually 0.5, ये जो है ये बन जाएगा 0.5, 1/2 मतलब ये 0.5 प्लस ये 2 इंटू 0.4 कितना बन रहा है, 0.8 बन रहा है. तो 0.5 प्लस 0.8 कितना बनता है, it becomes 1.3, and that is going to be the percentage error in K. That is delta K upon K into 100 comes out to be 1.3%. This is the percentage error which we want here. Check. Here you go, 1.3%. Okay, just take the screenshot of this. हो गया? Okay, so see the next question here. देखो यहाँ पे ये है next question हमारा. In Ohm's experiment, the values of unknown resistances were found out to be देखो द अननोन रेजिस्टेंसेस के जो वैल्यूज है वो हमको क्या मिल रहा है. देखो एक तो 6.12 करेक्ट, देन 6.09, देन इट इज 6.22, 6.15. कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर इन दीज मेजरमेंट्स. अच्छा ये क्वेश्चन तुमने किया है क्या, चेक करो एक बार. मैंने कल बोला था आपको करके रखने के लिए, किया क्या किसी ने? सर किया है. ओके, आया करेक्ट आंसर? हाँ सर. Okay, so let us move to the next question then, because it's very easy. Already we have done this type of question in the last lecture. You can refer to that. वो जो डेल्टा एल वाला क्वेश्चन था ना, वो सेम वैसा ही है बिल्कुल. तो you can do it. Okay, ये वाला ट्राई करो, 9th वाला. An object is falling freely under the gravitational force. Its velocity after traveling a distance h is v, and v depends upon the gravitational acceleration g and the distance. Prove with the dimensional analysis that k is equal to root gh. It's very easy. ये हमको प्रूव करना है कि v जो है वेलोसिटी वो इक्वल टू k इंटू रूट ऑफ gh होता है करके. तो वो हम कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हमको पता है. देखो लेट अस अज्यूम दैट v is proportional to, or v is equal to some constant k into g raised to something x and h raised to something like y, so that we can say these dimensions of v is going to be equal to dimensions of g raised to x into dimensions of h raised to y, and then we can get this as यस सॉरी. तो बेसिकली ये हमको पता चल रहा है यहाँ पे कि v जो है, तो v का जो डायमेंशंस है वो बनता है L1 t-1 करेक्ट. एंड g जो है, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका डायमेंशन होता है हमको पता है L1 एंड t-2 एंड रेज टू x एज इट इज. एंड h मतलब
height होता है, तो height is a special type of length only. So here it will be length raised to y simply. And now if we simplify this further, then we get this L1 t minus 1 kept as it is, which is going to be equal to L raised to x and t raised to minus 2x as a final, and into L raised to y kept as it is. So that if we simplify this still further, then we can get in the here next step L1 t minus 1, which is going to be equal to L raised to यहाँ पे x और y add होके वो x plus y बन जाएगा, देखो ठीक से, here it is x plus y, and t का जो है पावर minus 2x वैसे ही बचेगा बिल्कुल, और उससे भी आगे जाके ये दोनों तरफ के जो वैल्यूज है पावर्स है l और t के, वो अगर कंपेयर करेंगे तो हम देख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो x प्लस वाई का जो वैल्यू है यहाँ पे वो 1 के बराबर मैच हो रहा है, 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए हमको एक इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन हमको मिल रहा है माइनस 2x इज गोइंग टू बी इक्वल टू minus 1, this minus 1 here, so that we get this as minus 1. Okay, and then we can cancel out minus sign here and get 2x is equal to 1, which gives x is equal to 1 by 2. And if you put this value of x here in this equation, then we can get this as half plus y is equal to 1, which gives y is equal to 1 minus half, and 1 minus half means half again, and that's why we can get this as a y is equal to half simply. तो ये जो है वो हमको y is equal to half मिल जाएगा as a next step. तो y भी मिल गया, x भी मिल गया, no doubt. Then we can just put these values here in the equation, above equation, जो हमने already assume किया था यहाँ पे कि v is equal to k into g raised to x into g raised h raised to y, ऐसा इक्वेशन था, तो उसके अंदर अगर हमने ये डाल दिया वैल्यूज तो हमको मिलेगा v is equal to some k constant into g raised to half into h raised to half, that is in the next step it will be, अभी हमको पता है कि half raised to half माना क्या होता है, रूट होता है, तो इसलिए यहाँ पे बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में v is equal to k into root of g into root of h, so that we can just combine these roots and get this in the next step as k into root of gh, that's it. तो ये हमको मिल रहा है as a final equation. Okay, so just take this screenshot of this also. This is answer of the first question actually. Okay, the next step is, next question here is about okay, so let us move to the next question here. देखो ठीक से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये 10th वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार ठीक से, ये तो ठीक है, ऐसा करेंगे ये जो वाला क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे. Yes, just read this question fast. See, v is equal to aft plus b upon t plus c plus v naught is a dimensionally valid equation. Obtain the dimensional formula for a, b and c where v is velocity, t is the time and v naught is the initial velocity. Okay, तो अभी यहाँ पे हमको ये करना है यहाँ पे कि v is equal to at plus b upon t plus c plus v naught, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है. इस इक्वेशन को यूज करके हमको ए बी सी के डायमेंशंस निकालने हैं. ठीक है, तो देखो ठीक से हमारा इक्वेशन क्या है,
v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी एंड प्लस वी नॉट। ओके, ये इक्वेशन है। अभी हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी है वो क्या कहता है कि ये हर एक टर्म का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। सबसे पहली बात कि ये तीन टर्म्स जो ऐड होने जा रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ये टर्म्स जो ऐड होने वाले हैं, तो ये ऐड होने वाले टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तब जाके एडिशन पॉसिबल है। और अगर सपोज ये सबका डायमेंशन सेम है भी, तो भी इन सब का डायमेंशन इस v के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन से दैट द डायमेंशंस ऑफ v must be same as dimensions of at, which must be same as dimensions of b upon t plus c, which must be same as dimensions of v naught। अब यहाँ पे देखो डायमेंशंस ऑफ v नॉट और डायमेंशंस ऑफ v सेम है, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये v नॉट और v नॉट भी वेलोसिटी है और v भी वेलोसिटी है। बिल्कुल, दोनों वेलोसिटीज है तो दोनों के डायमेंशंस तो सेम रहेंगे ही, बिल्कुल। लेकिन इसको अगर हम इसके साथ इक्वेट करेंगे ना, तो हमको सबसे पहले a के डायमेंशंस मिल जाएंगे। देखो कैसे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि v का डायमेंशन अगर at के डायमेंशंस के बराबर है, तो उससे हमको क्या मिलता है, dimensions of v must be exactly same as the dimensions of a into dimensions of t as well. So if we take these dimensions of t in the denominator, then we can get dimensions of v। अच्छा, dimensions of v कितना है हमको पता है ऑलरेडी, वो हम डाल देंगे यहाँ पे, और dimensions of t से उसको डिवाइड करेंगे तो जाके हमको a के dimensions मिलने वाले हैं। तो इसलिए a के जो dimensions है वो हमको मिल जाएंगे simply dimensions of a is going to be equal to dimensions of v upon dimensions of t. What are the dimensions of v? They are L1 t minus 1. Okay, so these are the dimensions of v and t के dimensions जैसा कि हमको पता है ऑलरेडी, t मतलब टाइम होता है, तो इसलिए यहाँ पे t1 आ जाएगा। बिल्कुल, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा ये, तो वो बन जाएगा सिंपली L1 and t minus 2। So these are the dimensions of a। Okay, we have found it out। तो हमने ये फाइंड कर लिया है, a के डायमेंशंस तो हमको मिल गए, चलो नो डाउट। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ b। हाउ विल यू गेट दैट? तो उसके लिए एक सिंपल सी बात हमको यूज करनी है कि t प्लस, अच्छा c के डायमेंशंस हमको पहले मिलेंगे। देखो c के डायमेंशंस निकालना थोड़ा सा इजी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमको पता चल रहा है कि t प्लस c इज वेल डिफाइंड। सो t प्लस सी डिफाइंड होने के लिए t प्लस सी के डायमेंशंस जो है t के डायमेंशंस और c के डायमेंशंस, ये तीनों बराबर होना जरूरी है। ठीक है, और इससे ही पता चलता है, ये दोनों अगर हम इक्वेट करेंगे तो उससे हमको यह पता चलता है कि t के डायमेंशंस जो है वो c के डायमेंशंस के बराबर होना चाहिए। और अगर t के डायमेंशंस c के डायमेंशंस के बराबर है, तो c के डायमेंशंस जो है वो सिंपली क्या मिल रहे हैं हमको, टाइम के बराबर मिल रहे हैं, टाइम t1। दैट्स इट। तो ये हमको मिल गए t के डायमेंशंस, सॉरी c के डायमेंशंस। बिल्कुल, a के तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, अभी हमको निकालने हैं b के डायमेंशंस। तो उसके लिए हमको इक्वेट करना पड़ेगा ये टर्म और ये टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म हमको इक्वेट करना पड़ेगा। सो लेट अस डू दैट ऑन द नेक्स्ट पेज। तो देखो v इज इक्वल टू बी अपॉन टी प्लस सी है कि नहीं ये, तो अगर हम वो इक्वेट करेंगे यहाँ पे, तो देखो हमको क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, v is equal to b upon t plus c। Okay, so we can see that this dimensions of v must be same as dimensions of b upon t plus c। Okay, so we can get that dimensions of v which are simply L1 t minus 1, okay, which are going to be equal to dimensions of b which are to be found out, that is to be divided by dimensions of t plus c, where t and c are having the same dimensions। so t के dimensions क्या है, t1 है, तो इसलिए c के dimensions भी क्या होंगे, t1 ही होंगे। और t1 plus t1 ये क्या बनता है, t1 ही बनता है। डायमेंशंस के अंदर हम जानते हैं कि एडिशन के डायमेंशंस जो है वो हर एक टर्म के डायमेंशंस के बराबर ही रहते हैं,
और इसलिए हमको ये मिल जाता है नेक्स्ट स्टेप में L1 T minus 1 is going to be equal to dimensions of B upon dimensions of B plus C plus T, मतलब ही dimensions of T which is T1. Okay, so that we can just get these dimensions of B by taking this dimensions of T in the other side. तो ये जो dimensions of T है वो इस तरफ हमको लेके जाना है, तो इससे क्या बनता है देखो, तो वो बन जाएगा सिंपली L1 T minus 1 into T1 सिंपली। तो ये अगर हम करेंगे सॉल्व तो हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा देखो, तो डायमेंशंस ऑफ B निकल आएगा इसमें से, जो कि डायमेंशंस ऑफ B इज इक्वल टू L1 एंड T का पावर कितना आएगा -1 + 1, एंड व्हाट इज दिस -1 + 1, इट इज 0 सिंपली। तो इसलिए हमको ये मिलेगा L1 एंड T0, मतलब ही सिंपली L1 उसको हम लिख सकते हैं आराम से। So simply B के डायमेंशंस क्या मिल रहे हैं, L1, that's all। तो B के भी डायमेंशंस मिल गए हमको, देखो ठीक से, तो B के डायमेंशंस मिल गए और A और B के भी A और C के भी मिल गए ऑलरेडी। So just take the screenshot of this and this also। Finish with this? हो गया स्क्रीनशॉट लेके? Okay, so just see this next question। Just read this question. The length, breadth and thickness of a rectangular sheet of metal are 4.234, 1.005 and 2.0001 centimeter respectively. Give the area and volume of the sheet to correct significant figures। Okay, तो हमको एरिया निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है। चलो ठीक है, एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, सो हियर इट विल बी A is equal to length into breadth। So what is the length here? It's going to be 4.234। okay, तो यहाँ पे हमने उसको डाल दिया 4.234, it's in meter and multiplied by breadth which is 1.005। ओके, सो अभी ये जो है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, करके देखो ठीक से, 4.25517 multiplied by 1 point, sorry, 4.25517 it's going to be 4.25517, करेक्ट है? देखो ठीक से, it's 4.25517, याद रखो 4.25517, but as we know that we should round it up, हमको इसको राउंड ऑफ करना होगा so as to contain only 4 significant figures which are there in the both the numbers which are there present in the answer question। तो क्वेश्चन के अंदर दोनों जो नंबर्स है उनके अंदर सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बराबर, इसलिए इसमें भी हमको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होंगे, जिसको यूज करके हमको ये मिलेगा आंसर, ये देखो 4.255
बस इतना ही तक हमको राउंड ऑफ करना है। ये जो इसके आगे का नंबर है वो हमको स्किप करना है, राउंड ऑफ में वो चला जाएगा। तो इसलिए इतना ही हम बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर में ये होगा उसका एरिया, बिल्कुल। और व्हाट अबाउट वॉल्यूम? तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला? देखो, वॉल्यूम ऑफ द शीट इज गोइंग टू बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, करेक्ट है? ये तो नॉर्मल फॉर्मूला होता ही है किसी भी बॉक्स के लिए। सिर्फ इसमें क्या है ना कि शीट का जो थिकनेस है वो बहुत छोटा है, इसलिए उसको हम शीट बोलते हैं। बाकी उसका वॉल्यूम निकालने के लिए सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। उसमें से लेंथ और ब्रेड्थ तो हमको ऑलरेडी मिल चुका है। ये जो प्रोडक्ट है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि एरिया है, वो हमको ऑलरेडी मिल चुका है। वो हम यहाँ पे डाल देंगे डायरेक्ट एज इट इज, दैट इज 4.255 एंड दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट मतलब ही थिकनेस, जो कि यहाँ पे देखो 2.01 सेंटीमीटर है, राइट? तो ये बन गया यहाँ पे 2.01। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये लेकिन सेंटीमीटर में है। तो हाइट जो है 2.01 सेंटीमीटर, वी शुड कन्वर्ट इट इनटू मीटर फर्स्ट। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके लो तो क्या होगा? 0.0201 मीटर, दैट विल बी द हाइट इन मीटर। ओके, एंड देन पुट इट हियर। समझा ना कैसे? हमको इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, वो 2 डिजिट्स पीछे शिफ्ट करना है, जिससे वो 0.0201 बन जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा वो 0.0201। एंड नाउ इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस टुगेदर, व्हाट वी कैन गेट हियर इज, देखो 4.255 multiplied by 0.0201, 0.0201. Okay, how much it is? 0.855255, 0.0855255, याद रखो इसको। तो देखो हमको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मिलेगा 0.0855255। But we have to round it up so as to contain only 3 significant figures this time, because this only contains 3 significant figures, याद है? तो यहाँ पे इसके अंदर 3 ही significant figures है, इसलिए हमको आंसर के अंदर भी 3 ही significant figures लाने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 0.0855 बस, and this is going to be the in meter cube as a correct answer. अभी लोगों का 8.56 कैसे आ रहा है पता नहीं। तो ऐसा करो कि तीनों नंबर्स जो है, ये जो है सपोज ये 4.234, इसको राउंड ऑफ कर दो। तो 4.234 इंटू नहीं 4.23, 3 डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमको राउंड ऑफ करना है उसको। और इसको लिखेंगे सपोज 1.0001, नहीं 00 ओनली, multiplied by
0.0201. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, 4.23 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली, सीधा मल्टीप्लाई करो उसको 0.0201 and see what happens. वो तो और भी कम आ रहा है, नहीं वहाँ पे ही वो जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है एक्चुअली, ये 8.56 नहीं होना चाहिए, 8.55 होना चाहिए, इंटू 10⁻², तो करेक्ट है, नो प्रॉब्लम. ओके, so just take the screenshot of this also. Okay, finish with this. Okay, let us go to the next question. Let me okay, just see this here. This is your question number 12. Okay, just read it once again. If the length of cylinder is L, that is equal to, देखो length of cylinder दिया हुआ है 4.00 plus or minus 0.001, and that is in centimeter. Okay, then again radius of that cylinder is given to be R, that is equal to 0.0250 plus or minus 0.001 centimeter, and the mass of this same cylinder is also given to be simply 6.25 plus or minus 0.01, and that is in gram. Okay, तो अभी हमको निकालना क्या है, परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स डेंसिटी. तो डेंसिटी के अंदर का परसेंटेज एरर हमको निकालना है. देखो ठीक से, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है, डेंसिटी इज ऑलवेज गिवन बाय द फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, बट एज वी नो दैट वॉल्यूम इटसेल्फ, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, sorry, cylinder is given by pi into r square into h, correct है, so that we can get the formula for density actually mass upon volume, which is pi r square into h, correct है, and then we can be able to construct the formula for percentage error in the density. तो what is the percentage error in density, तो उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा delta d upon d, which will be actually equal to delta m upon m प्लस डेल्टा, अच्छा ये आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो आर स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, उसके अंदर का जो परसेंटेज एरर है वो डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर एंड प्लस डेल्टा एच
अपॉन h सिंपली। तो देखो यहाँ पे डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज एरर्स जो है वो हमेशा ऐड ही होते हैं। तो इसलिए हमको इनको परसेंटेज एरर को ऐड करना है। और इस पूरे को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये पूरा जो इक्वेशन है इसको इस तरफ 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज एरर बन जाएगा, और उस तरफ भी अगर पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो ये हो गया परसेंटेज एरर के बीच में का रिलेशनशिप। अभी यहाँ पे हमको डालने हैं उनके वैल्यूज, तो हमको मिलेगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 विच इज द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यहाँ पे फिर आ जाएगा डेल्टा एम। व्हाट इज डेल्टा एम हियर, सी हियर, ये सब तो दिया हुआ है ना हमको, ये हमारा डेल्टा एम है वो डालना है यहाँ पे। तो वो बन जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 6.25, ये बन गया 6.25। ओके, देन अगेन प्लस 2 टाइम्स ऑफ what is this delta r, what is it, see it here, it is 0.001, so here it is 0.001 divided by this r itself, which is going to be 0.0250. Okay, 0.0250. ओके, एंड प्लस h का परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर कितना बन रहा है वो ये देखो यहाँ पे, h मतलब यहाँ पे क्या है l है बराबर, तो इसलिए l मतलब ही h, तो इसलिए इसको यहाँ पे आ जाएगा 0.001 that is to be divided by 4.00 and this whole thing is to be multiplied by 100. Okay, so that we can get this as, so into 100. Okay, now if we distribute this 100 throughout this whole term bracket, तो ये 100 को अगर हम हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, तो ये 0.01 multiplied by 100 becomes equal to what, simply 1. So it becomes actually 1 upon 6.25 प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 100 से इधर से मल्टीप्लाई करो तो 0.1 बनेगा, और 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना बनता है, वो बनता है 0.2. ओके, 0.2 एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 0.0250. ओके, एंड हियर इट इज प्लस, अभी इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 0.1 सिंपली, तो 0.1 and that is to be divided by 4.00. Okay, and then just go on solving this further so that we can get this up to, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा देखो, तो ये बन जाएगा, अच्छा 1/6.25 कितना होता है निकाल सकते हैं आराम से। इसको अगर आपको चाहिए तो हम ऐसा लिखो कि, नहीं तो ठीक है कैलकुलेटर से कर देंगे फटाफट। ओके, 1/6.25, it is going to be 0.16. Okay, remember this correctly, 0.16. Okay, what about this, second thing here, ये दूसरा जो है 0.2 डिवाइडेड बाय 0.0250 कितना बन रहा है 8. ओके, so we can write it as 8 plus 8
एंड प्लस अब यहाँ पे आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 4, तो हाउ मच इट इज, देखो 0.1 divided by 4, it is going to be 0.025. Okay, so 0.025. Yes, so just add this up. तो देखो 8, 0.16 और 0.025 इन सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 8.1 आएगा यहाँ पे, 6 + 2 कितना बन रहा है 8, राइट, और यहाँ पे 5 एज इट इज इन द लास्ट स्टेप, तो 8.185%. This has to be the percentage error in the measurement of density. 8.185, correct. Okay, so take the screenshot of this fast. हो गया क्या? हाँ सर। Yes, sir. Okay, move to the next question. Here, this is our question. When the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from the Earth, its angular diameter is measured to be 35.72 minutes of arc. Calculate the diameter of Jupiter. Okay, तो देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, सपोज अभी हम यहाँ पे है अर्थ पे, और जुपिटर को हम देखते हैं, सपोज this is the Jupiter and suppose we see it from this Earth here, तो यहाँ पे हम सपोज देखते हैं जुपिटर को, देखो ठीक से यहाँ पे हम है, और suppose this is the point where we observe Jupiter from, ये पॉइंट ए से हम सपोज ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल इस जुपिटर के सामने है इधर सपोज, ठीक है। तो अभी होता क्या है ना कि जुपिटर का जो पूरा साइज है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड करता है। ये देखो सपोज ये पॉइंट हम मार्क करते हैं, टेलीस्कोप को अगर हम इस पॉइंट के साथ अगर अरेंज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो और ठीक है, और सपोज यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है तो वो हम मेजर करके लेते हैं, देखो ठीक से, सॉरी फिर से एक बार करेंगे क्योंकि वो एग्जैक्ट डायमीटर नहीं था, तो हमको एग्जैक्ट डायमीटर पे लेके जाना है इसको। ये सपोज एक डायमीटर है जुपिटर का, ओके, ये हो गया डायमीटर। और फिर अभी ये अगर हमने ज्वाइन कर दिया, ये देखो इधर ये पॉइंट सीधा हम ज्वाइन करेंगे इस ए के साथ, और इस पॉइंट को भी ज्वाइन करेंगे सीधा ए के साथ,
तो अभी यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये एंगल, इस एंगल को जान के हम जुपिटर का डायमीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल का जो फॉर्मूला है, इसको अगर हम थीटा बोल देते हैं सपोज, तो इस थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? देखो, अगर ये कैपिटल डी माना रेडियस है और ये स्मॉल डी मतलब जुपिटर का डायमीटर है सपोज, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि थीटा का जो वैल्यू है, थीटा विल एक्चुअली बी इक्वल टू आर्क दैट इज डी अपॉन रेडियस दैट इज कैपिटल डी। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू बन गया स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ओके, लेकिन हमको ये समझना जरूरी है कि ये थीटा जो है रेडियन में होना चाहिए, तब जाके हम ये सब कर सकते हैं, नो डाउट। So that we can just say that this small d actually will be equal to capital D into theta। तो ये हमको समझना है। तो ये करने के लिए, लेकिन अब देखो ठीक से, ये करने के लिए हमको क्या चाहिए? अभी कैपिटल D चाहिए और एट द सेम टाइम थीटा भी चाहिए। कैपिटल D तो दिया हुआ है ऑलरेडी, ये देखो कैपिटल D कितना दिया हुआ है, ये देखो ये कैपिटल D है एक्चुअली, देखो ठीक से। तो कैपिटल D is actually given to be 824.7 मिलियन किलोमीटर्स। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10⁶, राइट? एंड किलोमीटर का मतलब कितना होता है? 10�3। तो वो एक्चुअली कितना बन गया, इसको हम लिख सकते हैं आराम से। तो 824.7 इंटू 10⁹ और इससे भी आगे जाके इसको अगर हमको 8.247 ऐसा अगर लिखना है तो वो इंटू 10⁻11 बन जाएगा। 2 पॉइंट्स हमने और डिजिट पीछे शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया हमारा 8.247 इंटू 10⁻11 इन मीटर। ये कैपिटल डी बन गया। बट व्हाट अबाउट थीटा? थीटा जो हमको दिया हुआ है, देखो इट इज गोइंग टू बी 35.72 सेकेंड्स। सेकेंड्स है वो, समझा कैसे? सेकेंड्स। तो इसलिए 35.72 seconds. How to convert seconds into minutes? Because we don't know that 60 seconds is actually equal to 1 minute, right? So, and at the same time 60 minutes is actually equal to 1 degree, remember. And also that 1 degree is equal to pi by 180 radian. तो ये 3 इक्वेशंस यूज करके हमको इस सेकेंड्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो 60 seconds is equal to 1 minute. What does it mean? It means that 1 second is going to be equal to 1/60 minute. ओके, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा पहले, तो करो उसको कन्वर्ट। तो थीटा कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू 35.72 सेकेंड्स के बदले यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1/60 एंड दैट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू मिनट्स। ओके, ये मिनट्स बन गया। लेकिन हमको पता है कि 60 मिनट्स माना 1 डिग्री होता है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि 1 मिनट विल एक्चुअली बी इक्वल टू 1/60 डिग्री, राइट? तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसलिए नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या बनेगा ये, तो वो बन जाएगा 35.72/60 and this is going to be in minutes. But if you multiply it by 1/60 then it becomes in degree. Okay, and now finally we have to convert it into radian also by using this relationship. तो ये जो रिलेशनशिप हमारे पास है ऊपर यहाँ पे, तो ये वाला रिलेशनशिप यूज करके हम इसको डिग्री से रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है,
तो इसके लिए यहाँ पे पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई करना जरूरी होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा ये, तो वो बन जाएगा थीटा दैट इज इक्वल टू 35.72 डिवाइड बाय ये 60 इंटू 60, डायरेक्टली इट बिकम्स 3600 and this should be multiplied by pi by 180 and then it will become in radian and then this will be useful in this formula। तो ये जो इक्वेशन हमने आप ये बनाया है ऊपर, तो यहाँ पे हमको थीटा के बदले ये डालना होगा वैल्यू, और डी का तो वैल्यू हमको ऑलरेडी पता ही है, नो डाउट। तो अगर हम ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो हमको मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअली स्मॉल डी जो है वो कैपिटल डी इंटू थीटा है, जिसमें से स्मॉल डी जो है कैपिटल डी कितना है देखो इधर, ओके यही है कैपिटल डी का वैल्यू जो हम यहाँ पे नीचे लेके जाएंगे। This is going to be capital D, okay, and this should be multiplied by theta. So what is theta here? तो वो भी हम डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा का जो वैल्यू है इनटू यहाँ पे आ जाएगा 35.72 डिवाइड बाय 3600 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180, दैट्स इट। ये कैलकुलेशन हमको करने होंगे जो कि रेडियन में है अभी। तो ये मीटर में और ये रेडियन में होने से फिर वो करेक्ट आ जाएगा, ये वाला मीटर में आ जाएगा आराम से। तो देखो करके क्या होगा अभी, तो हियर लेट अस यूज द कैलकुलेटर। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। तो देखो यहाँ पे इधर का जो 8.247 है वो एज इट इज बचेगा पहले, इनटू इधर का ये जो 35.72 है वो एज इट इज बचेगा, इनटू पाई का जो वैल्यू है वो 3.14 हुआ करता है जो हम यहाँ पे लिख देंगे, और नीचे जो है इसके ये 3600 और 180 ये हमको मिलने वाला है। अभी एक्चुअली ये सब जो कैलकुलेशंस है ये कैलकुलेशंस आपको लॉग टेबल से करने जरूरी है, ठीक है ना। यू आर एक्सपेक्टेड टू डू ऑल दिस कैलकुलेशंस बाय यूजिंग द लॉग टेबल एक्चुअली, बट चलो ठीक है अभी लॉग टेबल आपको आता नहीं है, तो इसलिए जैसे महेश सर आज ही उन्होंने स्टार्ट किया लेक्चर लॉग टेबल्स के बारे में, तो चलो ये कैलकुलेशंस हम फिलहाल कैलकुलेटर से कर देंगे। बट एक्चुअली तुमको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, एग्जाम में तुमको क्या यूज करना है, लॉग टेबल्स ही यूज करने हैं। तो यूजिंग लॉग टेबल्स यू हैव टू डू ऑल दीस कैलकुलेशंस, बट चलो अभी फिलहाल हम जस्ट टाइम फैक्टर पे ये यूज कर लेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर है देखो ठीक से यहाँ पे क्या है, 8.247, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 35.72, ये देखो इधर 35.72 that is multiplied by 3.14 here, how much it is going to be। तो देखो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे एज इट इज, सो इट्स गोइंग टू बी 924.99, मतलब 925 हो गया ना ऑलमोस्ट, so approximately we can write it as 925, okay, तो ये बन गया 925, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर वी कैन सी, तो ये भी मल्टीप्लाई कर दो फटाफट डिनोमिनेटर वाला। तो डिनोमिनेटर में क्या है 3600 है, सॉरी 3600 मल्टीप्लाइड बाय 180, yes how much it is 648,000, okay 648,000,
याद रख लो। तो 648,000,000 and don't forget this 10 raised to 11 here। ये जो 10 raised to 11 था इधर का, तो वो तो आएगा ही नहीं यहाँ पे सामने, तो 10 raised to 11 भी है। ओके, नाउ जस्ट डू दिस कैलकुलेशन अगेन। So it is 925, ये 925 डिवाइड बाय 648,000,000 648। अच्छा नहीं तो ऐसा करो, ये 000 जो है वो 10 raised to 11 के साथ एडजस्ट कर लेंगे। जस्ट वर्क आउट दिस 925 डिवाइडेड बाय 648, हाउ मच इट इज? इट्स 1.4274। ओके, तो 1.427 इतना ही हम ले लेंगे, 1.427। ओके, so here it is going to be 1.427। लेकिन ये 3 जीरो हमने लिए ही नहीं थे ना, तो वो 3 जीरो जो है वो 10 raised to 11 में से डिडक्ट होंगे और बचेगा यहाँ पे 10 raised to 8 ओनली। So this is 10 raised to 8 and that is going to be in meter। Okay, so this is going to be the diameter, so you can write it as 1 point, अगर हमको किलोमीटर में लिखना है इसको तो 1.427 into 10 raised to 5 किलोमीटर ऐसा लिखना पड़ेगा। और अगर इसको और आगे जाके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, सिंपली किलोमीटर में ही, अगर ये 10 raised to power 5 के फॉर्म में नहीं लिखना है, सपोज इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो ये पॉइंट जो है वो 5 डिजिट्स आगे शिफ्ट होगा और हमको मिलेगा 1.427। कितना पॉइंट डिजिट शिफ्ट हो गया? 1 2 3 और 2 जीरोस आ जाएंगे यहाँ पे, 0 0, एंड दैट इज गोइंग टू बी इन किलोमीटर। सो वी कैन से दैट 14 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 1,42,700 किलोमीटर, दैट्स ऑल। 1,42,700 किलोमीटर। Yes, 1.428 into 10 raised to 5 किलोमीटर। ये देखो 1.425 है, हमारा 7 आया, into 10 raised to 5 किलोमीटर, करेक्ट है। ओके, सो जस्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये फर्स्ट पेज एक्चुअली। लिया? और उसके बाद अभी इस दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये सेकंड पेज है। हो गया? Yes, sir. Okay, so next question is very easy, you can do it orally, simply orally कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो है, if the formula for physical quantity is given, then percentage error in the measurement of A, B, C, D are already given, then calculate the percentage error in X. What is the percentage error in X? It will be actually, ये देखो A का पावर कितना है? 4 है ना, तो उसका परसेंटेज एरर 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ A प्लस इधर फिर B का परसेंटेज एरर 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये देखो 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ B, देन प्लस वापिस अभी C का परसेंटेज एरर कितने टाइम्स हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ C एंड प्लस अभी D का हाफ पावर है ना, यहाँ पे D का हाफ पावर है, इसलिए परसेंटेज एरर जो D के अंदर आएगा उसका हाफ हो जाएगा बिल्कुल, तो D के परसेंटेज एरर का आधा। बस अगर ये वर्कआउट कर दो तो 4 टाइम्स ऑफ A के अंदर परसेंटेज एरर कितना है? 2%, वो डाल दो यहाँ पे, प्लस 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर B में कितना आ रहा है? ये देखो 3%, वो डाल दो इधर, प्लस 1/3 ऑफ परसेंटेज एरर इन C is going to be 3% again, see it here 3, and plus half of percentage error in D which is going to be 4 here, here it is 4, that's it।
and if we just work this out, we can get this as 8 plus 9 plus 1 plus 2, and which comes out to be 8 plus 2 is 20. 20. Yes, 20%. That's it. And what about this? Write down the number of significant figures in the following. इस नंबर के अंदर significant figures कितने हैं? 1. 1. इस नंबर के अंदर कितने हैं? 4. 4. और इसमें कितने हैं? 2. और लास्ट वाले नंबर इसमें कितने हैं? 2 ही है. और इस वाले नंबर में कितने हैं? 2 ही है. बिल्कुल. 1 4 2 2 2. It's very simple. And last one, the diameter of the sphere is 2.14 centimeter. Calculate the volume of the sphere up to the correct number of significant figures. Okay, so sphere का diameter दिया है, तो उसका radius कितना होगा? उसका आधा, जो बनेगा 1.07. करेक्ट है, सेंटीमीटर. ये बन गया उसका radius. And what is the formula for the volume of a sphere? It is 4 by 3 into pi r cube. ये होता है formula for volume of sphere. So if we use this here, then we get this as 4 by 3 into pi. Pi मतलब 3.14. That is to be multiplied by r cube. What is r here? It is 1.07 and उसका cube को हमको करना है. तो ये अगर हम workout करेंगे calculation पूरा using log table, once again you have to calculate it by log tables only. For the time being factor, we'll use the log table here just for to save the time. Okay, तो अभी यहाँ पे देखो 1.07 इसका क्यूब करो पहले. तो देखो क्यूब करने के लिए उसको पहले हमको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.07 अगेन, एंड अगेन वी विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1.07 ओनली. ओके, सो क्यूब हमको मिल जाएगा जो बनता है 1.225043. ओके, just multiply it by 3.14. okay, this is what multiply by 3.14. how much it is? अरे 1.225 multiplied with 3.14. okay, how much it is? It is 3.8465, right? And this 3.8465, okay, 3.8465 must be multiplied with 4 and divided by 3. what we get is 5.128. okay, तो ये तो हमको मिल रहा है 5.1286, बट वी हैव टू राउंड इट अप, राइट? इसको हमको राउंड ऑफ करना होगा. अभी देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1.07 में कितने हैं बताओ? 3. 3.14 में कितने हैं? 3. तो मिनिमम 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है कि नहीं सब में, तो इसलिए यहाँ पे भी हमको 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने पड़ेंगे, सो दैट वी हैव टू राउंड इट अप. तो इस 7 को अगर राउंड ऑफ करेंगे, अगर करते जाएंगे, तो यहाँ पे देखो ठीक से, इस 7 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो इसके पहले वाला जो नंबर है वो 7 बन जाएगा, उसके पहले वाला नंबर वापस 7 बन जाएगा, ये भी 7 बन जाएगा, ये भी 7 बन जाएगा. ऐसे करते करते अगर राउंड ऑफ करते आएंगे तो ये 8 के बदले क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा. और उस 9 को भी अगर राउंड ऑफ करेंगे तो इस 2 के बदले क्या आएगा? 3 आएगा. बिल्कुल, ये देखो 3 आ जाएगा. तो 5.13 विल बी द करेक्ट आंसर. तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है, 5.13. समझा ठीक से? सो इट विल बी द 5.13 centimeter cube. That's it. So this is going to be the final answer which is there here. Okay, तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. यस, हो गया? Yes. ओके,
सो लेट अस स्टॉप हियर। ये चैप्टर के अंदर के सारे न्यूमेरिकल्स हमारे हो गए, ठीक है। सो next time we'll start with the next chapter, that is about the mathematical methods in physics, okay। तो तब तक महेश सर का जो लॉग टेबल का सेशन चल रहा है वो ठीक से अटेंड करो, क्योंकि वो जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। Thank you, sir.